afternoon, everybody. Hope I am audible. Thank you for taking the time out to attend our pre-match press conference prior to our game against Chennai Super Kings. With us, we have Ishan, who will take your questions one by one. Let's follow the usual format. Raise your questions and just introduce yourself to Ishan, and then we'll go forward with the questions. To begin with, Saurabh, can you go first? Saurabh, wait 1 second. Saurabh, could you repeat your question, please? Yeah, sure. Am I audible now? Yes. Yeah. Okay, okay. So hi Ishan. Hi, sir. I want to ask you, everyone, goes through high highs and lows in their careers. So when you go through a low, what is it that helps you during that phase? And how motivating and helpful is it to have your captain and team management backing you during a league match? So I think ups and downs are very much part of this game, and what we focus is on in the middle phase also we did not, as a team also we did not perform that well. But what's important is how we keep the process right during the matches. Yeah, we will lose matches. There will be matches when we won't perform, but what matters is how we keep the process right throughout the season. It's very easy to lose hope and get off how you started, but at the same time we focus on as a team. Okay, we have to focus on our game, how we can improve and how we can be an example for others, and how Rohit Bhai can do the same thing. So our focus is mostly on that, and yeah, we want to win matches. We are giving our best, but unfortunately, we lost many close matches this season, and this happens. And I think we'll make it right the next season. Saurabh, any follow up? Yeah, and when you are in good form, have you identified what is sort of working for you there? Is it something technical? Is it something off the field, or is it a mix of the two? No, I think what worked for me well for me was I was initially, when I started the tournament, I was not thinking so much. I was just going in and batting like I used to do, and my focus was on giving good start to the team. But I think later on, somewhere when I was trying to finish the game and do the job what others was supposed to do, maybe I lost my focus in the first 6 overs, and that's what I had a chat with the coach and captain also. So they said, if you just give us a good start, it will be helpful for a team. So you don't have to think to finish the game. If you are set there in the middle, you will anyway do that. So right now my focus is on just giving good start and making sure that I don't get out easily. And if I am the set batsman in the middle, I make sure that I have to be someone who is there to finish the game. Thanks, Ishan. Yeah. Anjali, next question, please. Yes, hi Ishan, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईशान, इस टूर्नामेंट में शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हुई थी। शुरुआती कुछ इनिंग बड़े रन्स भी आए थे, लेकिन मिडिल जो मैचेस थे वहां पर आपकी फॉर्म थोड़ा सा कम दिखी। तो उस वक्त कप्तान से किस तरह की बातचीत हुई, और पिछले कुछ मैचों में आपने अपना एकदम से इंटेंट चेंज किया, तो क्या चेंजेस किए आपने उसमें? सर, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, और जैसा मैंने भी पिछले सवाल में भी कहा कि मैं उतना कुछ सोच नहीं रहा था, मेरा फोकस यही था कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं जो टीम को हेल्प करता है, रादर देन थिंकिंग कि मुझे अभी खेलना है, मुझे एंड तक गेम को ले जाना है। ये सोचने से ज़्यादा मैं बॉल टू बॉल बस देख के खेल रहा था। तो अभी लास्ट कुछ मैचेस में भी मेरा सेम प्रोसेस रहा है कि मैं कोई बॉलर, एक पर्टिकुलर बॉलर को टारगेट करके नहीं खेलूंगा। आई जस्ट गो, और मैं जो बैटिंग करता हूँ, जैसे मुझे लोग जानते हैं, मैं वैसे ही करने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं अच्छा स्टार्ट देता हूँ टीम को, तो ऑब्वियसली वो हम लोग एक अच्छे टोटल की तरफ भी ले जा सकते हैं, और वहाँ पे हम लोग मैच में अच्छा टोटल खड़ा करके जीत भी सकते हैं। तो कैप्टन से और कोच से भी यही बात हुई थी। उन्होंने भी बोला था, तुझे बस जाके अपना गेम खेलना है, बाकी सबके रोल्स होते हैं टीम में। जहाँ पे मेरा रोल भी ऐसा ही है कि अच्छा स्टार्ट देना है, और अगर मैं एक सेट बैट्समैन हूँ बीच में, तो मुझे कोशिश करना है कि मैं 30s या 40s में नहीं आउट हूँ, और उसको ट्राई करूँ बड़ा स्कोर करने का।
तो बस इतनी सिंपल रखा है हमने। हाँ, हम लोग बीच में फॉर्म खराब हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग कैसे बाकी काम जो हम लोग करते आ रहे हैं पहले से, जो हमारा प्रैक्टिस हो गया, जो हमारा ऑफ ऑफ द मैच जो हम लोग का रूटीन होता है, वो चीज़ कैसे कंटिन्यू रखते हैं। अंजलि, any follow up? Yeah, sure. अभी जब हमने देखा कि बीच में थोड़ा सा रोहित के इतने रन नहीं बन रहे तो राव के भी नहीं बन रहे, तो उस वक्त आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो गया था? किसका सर? मेरा क्या? आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो गया तो उस वक्त जब आपके भी बीच में रन नहीं बन रहे तो रोहित के भी? सर दोनों के रन नहीं बन रहे थे तो मेरा इम्पोर्टेंट क्या होगा? यही था कि रोहित भाई जितना ऑलरेडी कर चुके हैं इंडिया टीम के लिए, और अभी आईपीएल में भी जैसे उन्होंने टीम को किया है, हमेशा कभी कभी वो फॉर्म खराब होना सबके लिए, सब क्रिकेटर जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ऐसे इस लेवल पे जहाँ पे सब इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, वहाँ पे फॉर्म खराब होता है प्लेयर्स का। बट मैं देखा हूँ जैसे रोहित भाई ने भी जैसे प्रैक्टिस किया है, और ऐसा नहीं हुआ है कि वो फॉर्म खराब होने पे या मेरा भी फॉर्म खराब होने पे हम लोग अपने प्रोसेस को छोड़ा है। रोहित भाई भी उसी इंटेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, एंड वो मेक श्योर करते हैं कि जो उनके अराउंड जो यंगस्टर्स हैं, जैसे हम लोग हो गए और बाकी जो प्लेयर्स हैं, वो लोग कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो उनका वो जो कॉन्वर्सेशन स्किल भी होता है सब प्लेयर्स के साथ, अभी भी सेम है जैसा हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। सो ऐसा नहीं है कि अभी वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मुझे कैसे करना है, बट एट द सेम टाइम ही इज टेकिंग केयर ऑफ द टीम ऑल्सो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चाहे आप कैसा भी परफॉर्म कर रहे हो, जब टीम नहीं जीत रही होती है तो वो परफॉर्मेंस आपको जीरो ही लगता है। तो ही इज मेकिंग श्योर कि कैसे मैं सबको एक पेज पे रखूं, और कैसे हम लोग जब वापस मिलेंगे या अभी के बाकी 3 मैचेस में हम कैसे खेल सकते हैं। तो ये सब चीज़ एज अ कैप्टन आई थिंक वो बहुत ही अच्छा भी कर रहे हैं, सबको सबका ख्याल भी रख रहे हैं एट द सेम टाइम। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग एक पेज पे, सेम पेज पे, हाँ हार रहे हैं मैचेस, बट वहाँ पे हम लोग कोई एक दूसरे से बैक डाउन नहीं फील कर रहे हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट आप जानते हो इस लेवल पे कुछ भी होता है। अभी हो सकता है हम लोग अगले सीजन आएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे। Thank you. Saurabh, you have a follow up? Yeah, Ishan, just a slight digression here. अभी एक recent interview में सूर्य कुमार ने बोला था कि if you have lost a match or you are going through a bad phase, the best person to be around is ईशान किशन, कि वो आपका mood immediately light कर सकता है, वो आपका मतलब mind को heavy नहीं रखता है। तो can you just talk about that? आप कैसे रहते हैं, मतलब in your environment, या is it something आप consciously करते हैं कि सबका mood ऊपर रखना चाहिए? सर मुझे लगता है कि जितने अच्छे फेसेस होंगे, जितने खुशी वाले फेसेस होंगे टीम में, उतना अच्छा होता है टीम का माहौल। क्योंकि एज अ टीम मेंबर मैं भी नहीं चाहूँगा कि हाँ मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ और अगर मैं किसी को लो देख रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर उस समय नहीं फोकस करता हूँ। मुझे ये सोच में रहता है कि वो बंदा कैसे, मैं उसको कैसे खुश रख सकता हूँ बातों से ही, या कुछ हम लोग प्रैक्टिस में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, हंसी मजाक चलती रहती है, वैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जब मेरा फॉर्म नहीं चल रहा होता है तो बाकी प्लेयर्स भी हैं जो मेरे मूड को लाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक दूसरे को हेल्प करना ही टीम का खासियत होता है। कैसे हम लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं और पूरी टीम का ध्यान दे रहे हैं। तो बस हंसी मजाक चलती रहती है नॉर्मली, और मेरा ऐसा नेचर भी है कि मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ ज़्यादातर। तो मैं कोशिश करता हूँ बाकियों को भी अपने साथ खुश रखूँ। Shashank, can you go next? Ishan, obviously a lot of you have played together at Mumbai Indians over the years, but among the new players who've come in, who is that one person who you've really gotten along well with, and just tell us about that camaraderie? I think Tilak is someone who is like very nice and he is like me only. जब मैं भी आया था मैं सबसे हंसी मजाक करते रहता था क्रिकेट के साथ, एंड ही इज समवन हु लाइक्स टू इंटरेक्ट विद गाइस। जैसे वो आधे दिन पूरे दिन अपना, जिस दिन प्रैक्टिस नहीं होता है, टीम रूम में ही बैठा रहता है, सब लोग के साथ हंसी मजाक करता है। और एट द सेम टाइम जो उसका प्रोसेस है फील्ड पे भी वो भी बहुत अच्छा है, जो वर्क एथिक्स है सब चीज़ है। ही इज़ अ फिट गाय।
जो अपने क्रिकेट को काफ़ी सीरियस लेता है, तो उससे भी बहुत कुछ देखने को मिलता है लोगों को कि वो कैसे अपने आप को एक यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट सीजन में आके अपने आप को वो उस लेवल पे रख रहा है जहाँ पे बाकी सब काम करते हुए भी वो अपने क्रिकेट पे भी फोकस कर रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है उसके बारे में। You've also been a part of the bubble, a kind of a restricted environment now for a while since. Sorry, sir, can you come again? You've been a part of the bubble since the India West Indies series at home and then followed by the IPL now. So it's been 3-4 months in such a kind of environment. Have you developed some new routines or new things that you've kind of enjoyed doing on non-match days or when you're been away from the field? सर अभी अच्छी चीज़ यही हुई है कि जब मैं पहले कुछ सीज़नों पे उतना फॉलो नहीं करता था मैं डाइट प्लान्स एंड ऑल, बट अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी कुछ। मैंने जो बाकी सीनियर प्लेयर्स को भी देखा करने के लिए, और जैसा बात भी हुआ मेरे ट्रेनर से इंडिया टीम में कि कैसे बॉडी हेल्प करती है आपको क्रिकेट में, जो कि मैं रियलाइज़ भी कर रहा हूँ कि कीपिंग में अगर मेरा मूवमेंट अभी थोड़ा सा मूवमेंट में मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ा क्विक फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें डाइट पे भी आपके निर्भर करती है और आप कैसे ट्रेनिंग करते हो, कैसे अपना एक रूटीन बनाते हो। क्योंकि आईपीएल में आप देखोगे कि मैचेस होते रहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो ट्रेनिंग पार्ट होता है मैच के अलावा वो चीज़ आप मिस करते हो। बट यहाँ पे एक अच्छा प्रॉपर प्लान है जो मैंने अपने ट्रेनर से डिस्कस किया है, और उसके बाद हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि कैसे हमारा फिटनेस भी मेंटेन रहे और कैसे हमारा मैचेस भी चलता रहे एंड वी फील गुड एट द सेम टाइम। तो ये चीज़ें हैं जो इस सीज़न हम लोग कर रहे हैं, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज हु आर ऑलरेडी इन द इंडियन टीम दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम प्लान, जो काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा प्लेयर्स को। तो अभी हम लोग ने बबल में रहे हैं, बट अभी हम लोग कैसे यूज़ ले सकते हैं इस बबल का, हम लोग यही सोच रहे हैं। अभी लाइक बॉडी तो यूज टू हो गई है बबल में रहने की, बट वी आर ट्राइंग कि हम लोग कैसे इस बबल का भी बेस्ट यूज़ ले सकते हैं, जहाँ पे इतना फैसिलिटी हमें एमआई ने दिया है, जिम है, ट्रेनर्स हैं, 3 ट्रेनर्स हैं जो लगे हुए हैं हमारे पीछे। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे अपने बॉडी को बेस्ट शेप में रखें और कैसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकें। Thanks so much. I'm also next question. Sorry, यार मैं थोड़ा late join हुआ तो sorry if I'm asking it again. इट्स ओके सर। सर एक चीज आप once and for all clear कर सकते हो कि ये ऑक्शन प्राइस टैग प्रेशर एक बार आप टीम ज्वाइन करने के बाद एक प्लेयर के हिसाब से क्या असर करता है, कैसे असर करता है, आपने कैसे डील किया? सर प्राइस टैग आई थिंक वो एक सर्टेन टाइम के लिए रहेगा आपके पास। जब ऑक्शन होता है उस दिन से आपका हो सकता है 1 दिन मैक्सिमम या तो 2 दिन रहेगा आपके ऊपर। बट अभी आप जिस लेवल पे खेल रहे हो और इतने टाइम से खेल रहे हो, आपको पता होता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, या मैं उस प्रेशर को अपने दिमाग में रखूँ या ये सोचूं कि मैं टीम को कैसे जिता सकता हूँ। प्राइस टैग ऑब्वियसली ये सब प्रेशर थोड़े दिन रहेगा, बट जब आपके अराउंड बहुत अच्छे सीनियर्स होते हैं जिससे आपकी बात होती है, जैसे अगर किसी प्लेयर को ऐसा फील हुआ कि मैं प्राइस टैग को लेके थोड़ा प्रेशर में हूँ, इतने सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे रोहित भाई हो गए, जब मेरा आरसीबी से मैच था विराट भाई ने या हार्दिक भाई ने, सबने सेम ही बात किया था कि ये प्राइस टैग के बारे में मुझे नहीं सोचना है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग आई हैव आस्क्ड फॉर। वो किसी को अगर बिलीव हुआ तब उन्होंने किया। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग प्राइस टैग के बारे में, मैं कैसे क्रिकेट के ही बारे में सोचूं और उसी जोन में रहूं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बात करना भी सीनियर प्लेयर्स से, क्योंकि वो लोग इतने टाइम से खेलते आ रहे हैं, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलता है कि वो कैसे सोचते हैं, जो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। सब लोग से उन लोग का वे ऑफ थिंकिंग कि हाँ मैं भी जब ऐसे आया था इनिशियली, क्योंकि सबके साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा जब उनका प्राइस ऊपर गया होगा, तो उन लोग ने कैसे हैंडल किया उस चीज़ को। तो वो चीज़ मैंने बात करी और अभी आई फील वेरी लाइट, और मैं उस चीज़ के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। प्राइस टैग इस वो एक सेकेंडरी चीज़ है। पहला फोकस आता है कि चाहे आप 1 करोड़ में बिके हो, बेस प्राइस में बिके हो या 15 में, आपका पॉइंट ये होता है टीम में आप कैसे जिताते हो टीम को, या कैसे अगर आप फॉर्म में नहीं हो कैसे आप बाकी प्लेयर्स को हेल्प करते हो अपना बेस्ट लाने में। तो हमारा अभी ध्यान उसी चीज़ पे है। I'm also any follow-up? सॉरी ईशान, और एक चीज सिर्फ ये जो जब टीम का अच्छा नहीं चल रहा है स्पेशली आईपीएल में, तो जो क्रिकेट फॉलो नहीं करता वो भी लेने के लिए पीछे पड़ जाता है। हाँ और मतलब तो कट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ये आज की फोन की दुनिया में कितना मुश्किल हो जाता है, आप कैसे डील करते
सर मैं उतना चेक नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग हमारे सिचुएशन में नहीं है। बाहर से बैठ के मैं भी हो सकता है बहुत चीज़ सबके बारे में लिख दूँ, क्योंकि वो सबसे आसान काम है फ़ोन उठा के टाइप करना। लोग भी हाँ ऑब्वियसली, अभी मैंने देखा है कुछ प्लेयरों को जो नए नए आए हैं टीम में, वो कैसे मैच के बाद कमेंट सेक्शन भी चेक कर रहे थे, तो मैंने उन्हें यही बोला था कि ये सब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग नहीं खेल रहे हैं तुम्हारी जगह पे, और वो हमारा प्रेशर वो लोग नहीं जान रहे हैं कि हम लोग किस प्रेशर में गए थे। उनके लिए आसान है लिखना कि छक्का मारना चाहिए था, 6 बॉल 36 बॉल के लिए 36 छक्के मार दो, बट क्रिकेट इतना आसान होता नहीं है। वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, उस समय टीम क्या रिक्वायर करता है। हाँ, सब प्लेयर्स को जैसे शॉट्स खेलना पसंद होता है, बट आप कभी कभी देखोगे मानने वाले प्लेयर्स भी बॉल टू बॉल खेलते हैं 25 बॉल, क्योंकि वहाँ पे वो सिचुएशन होता है जहाँ पे आपको पार्टनरशिप चाहिए होता है। तो मुझे लगता है पब्लिक के लिए लिखना बहुत ही आसान होता है, बट मुझे नहीं लगता है वो लोग, हाँ देयर आर सर्टेन फैंस जो जानते भी हैं इस चीज़ को, जो लोग आप देखोगे बैक भी करेंगे आपको, अगर आपके सोशल मीडिया पे आपको अपने मैनेजर के थ्रू ही पता चलेगा कि आपको बैकिंग भी मिल रही है गंदे टाइम पे। बट आई थिंक जो ये सब पार्ट है जहाँ पे कुछ भी लोग कमेंट करते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है बाकियों को भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं होगा, क्योंकि लोग तो बोलते ही रहेंगे। अगर फैंस हैं भी तो वहाँ पे हेटर्स भी होंगे ही आपके, जहाँ पे वो लोग थोड़ा इधर उधर लिखेंगे, बट उनका काम है, उनको लिखने में मज़ा आ रहा है, इट्स ओके, हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग देखते भी नहीं है उनके मैसेजेस को। तो Thanks, sir. Good luck. या Two questions chat में आए. First one is, how much are you enjoying your wicket keeping this season? Yeah, obviously I got to keep for a very long time now. अभी काफ़ी टाइम बाद मैं कीपिंग कर रहा हूँ MI के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और पीछे से मैं कैसे हेल्प कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू हेल्प द कैप्टन विद द एंगल्स इन द फील्ड एंड हाउ आई कैन सजेस्ट हिम, जो मुझे पीछे से फील होता है। तो आई एम एक्चुअली इंजॉइंग इट राइट नाउ विद विकेट कीपिंग, एंड कैसे बॉलर्स को मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि एज अ विकेट कीपर आई नो कीपर्स जो होते हैं वो बैट्समैन को सबसे ज़्यादा पिक करते हैं कि कब कौन सा बैट्समैन क्या सोच रहा है, कहाँ मारने का सोच रहा है। तो वो डिस्कशन जब चलती रहती है बॉलर्स के साथ, तो मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्प भी करता है बॉलर्स को एंड कैप्टन को भी, क्योंकि कैप्टन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि किसको अगले ओवर में लाना है, कौन अभी अगले ओवर के लिए बेस्ट होगा। तो बहुत सी चीज़ कीपर पे डिपेंड करती है कि वो कैसे कैप्टन का रोल आसान कर सकता है। सो अभी तक तो आई एम रियली इंजॉइंग माई जॉब राइट नाउ। Okay. Thank you everybody for your questions. We'll wrap right Thank away. you.